तो इसका भी विधान ग्रंथों में बताया गया है कि गाय देसी हो। महाविषों को विषहीन कर देने की क्षमता रखता है ये पंचगव्य, वो देशी गाय ही का काम आएगा। देसी नस्ल की गाय होनी चाहिए। वर्तमान उपलब्धता के अनुसार गायों को भारत में 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संपूर्ण देसी, विदेशी एवं संकरित। स्वाधीनता से पूर्व भारत में 40 से अधिक शुद्ध देसी नस्ल की बहुतायत थी। आजादी के बाद इनकी वृद्धि दर में काफी गिरावट आने लगी, परंतु 80 के दशक में विदेशी व संकरित गायों के जबरदस्त प्रशासनिक प्रचार के बाद देसी गायों की मात्रा भी तीव्र गति से घटने लगी है। Now the number coming down of the indigenous breeds is a matter of panic, and the rate of decrease is also very high. It was 5% in the years 92 to 97, 10% in the next 5 years, and the next census is presently happening, and we might see the figures which we are afraid might come more than 10%, and if that is so, then we'll be really placed in a very odd situation. कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और कई लुप्त होने के कगार पर हैं। अधिक दूध के लालच में इनकी जगह संकरित गायों को दी जा रही है। विदेशों का अंधानुकरण करने वाली सरकार की तथा कथित लाभ प्रेरित नीतियां इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। अधिकतर किसान व विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई हितकारी या बुद्धिमानी वाला कदम नहीं रहा है। The Jerseys and the Holstein Friesians and the Brown Swiss may be good for their countries, but these are the cows which are meant for my country, and we are inserting the frozen straw of the semen of the foreign cows. Why? Why go against nature? It was our own breeds that were doing good. Crossbreeding was useful at certain places in certain parts, but not in the manner that way crossbreeding has been spread out. The indigenous breed can survive in the most absurd conditions: high temperature, minimum feed and fodder, minimum requirement of the water, while the crossbreeders cannot survive. When the feed is not available, crossbreds are not able to produce. Their physiology goes from bad to worse, and then that becomes a pathological problem. For example, theileriosis, the babesiosis, cystic ovaries, problem of the udders, worm infestation too also, which are rarely seen in the indigenous breed. So the crossbreds are not able to even reproduce, are not able to perform. The farmers have to provide excess of the energy expenditure for their maintenance as regards cooler, extra vaccination. And there is a net loss to the farmers, to those ruralites. Our cows don't need medication at all. They graze in the field, they go sit in the sun, and they take care of the. भारत की शुद्ध नस्ल का गोवंश अपनी चमड़ी, देह गठन व अन्य कारणों की वजह से यहां की ऋतुओं की भिन्नता, अत्यधिक गर्मी व नमी को झेलने में आदर्श रूप से सक्षम है। Nature of the breed and the nature of the area, these two go together in an integrated manner. 52 डिग्री में खड़ी कर दीजिए, उसका जीव बाहर नहीं निकलेगा। फलस्वरूप उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं, रोग निवृत्ति प्रणाली संकरित गायों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। If there are droughts, if there are floods, if there are diseases, this breed is having the capacity to still continue to survive. सहन करने की क्षमता है, रोग प्रतिकार शक्ति जिसमें चाहिए वो देशी गाय में। जबकि विदेशी गायों के साथ ये विपरीत है, क्योंकि वो केवल ठंडे वातावरण के लिए उपयुक्त है। अपना उष्ण कटिबद्ध देश है और ये जो गायें फॉरेन की है, उन गायों को यहाँ लाने के बाद में इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाती। Suffer horribly, and yet they keep breeding them. They keep wanting to promote the breeding of Jerseys in this countries, but it's simply impractical and cruel because they can't survive here. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की शुद्ध नस्लों की पीठ पर एक कुकुंद या थुम्ब होता है। शास्त्रों के अनुसार इसमें एक सूक्ष्म सूर्य केतु नाड़ी होती है। गाय अपने सींगों से सूर्य की किरणों को ग्रहण करती है, जिसके कुछ सामान्य तत्वों को यह नाड़ी औषधि दृष्टिकोण से बहुमूल्य स्वर्ण एवं तांबे जैसे तत्वों में परिवर्तित कर देती है।
गाय अपने मूत्र एवं दूध के द्वारा इन्हें हमें प्रदान करती है। इसके अलावा किसी भी जीव की शुद्ध नस्ल के सुरक्षित एवं बेहतर होने के प्राकृतिक कारण भी होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण से जन्मे पशुओं के मूल अभिलक्षणों पर एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है। ये जर्सी गाय को सवेरे 10 बजे आप देखिए हांफने लग जाएगी। It's too hot for them. They get all diseases that you can possibly think of. They eat 3 times as much and need 3 times as much water, and it's not practical for farmers to keep them. ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जब ब्राजील जैसे देशों में यहां की गीर एवं अंगोल जैसी नस्लों को ले जाकर उनका संवर्धन किया जा रहा था, उस वक्त हम यहां पर उन्हें नकार कर विदेशी नस्लों को बढ़ावा दे रहे थे। दुर्भाग्यवश ये काफी हद तक आज भी चल रहा है। ज्यादातर डेयरी फार्म जिन पर हमारे बड़े बड़े शहर अपनी दूध की आवश्यकताओं के लिए निर्भर होते हैं, वो भी अधिक दूध उत्पादन के लिए संकरित गायों को ही बढ़ावा देते हैं। उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से संकरित गाय देसी गायों से भले ही आगे हों, पर गुणवत्ता के मापदंड पर देसी नस्ल कहीं उत्कृष्ट है। हमारे औषधि के लिए वो कोई काम की नहीं है। आज डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जर्सी का दूध है। Jersey cow has less effect in comparison to the indigenous breed. I have carried out extensive research on this aspect and compared the urine of crossbred cow, the exotic cow, buffalo, goat and indigenous cow. And I found on the research that the urine of indigenous cow is far superior, which is enhancing the body's defense mechanism. बावजूद इसके वर्तमान मानसिकता व सरकारी नीतियों की वजह से देश के अधिकतर बड़े शहरों में शुद्ध नस्ल की गायों का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलना असंभव है। काठियावाड़ी 3-4 लीटर और 3 महीना दूध देती है। वो अपने को बंबई में रख के वो नहीं पोसाएंगे। ये विषय कई गौसेवी संस्थाओं, वैज्ञानिकों व डॉक्टरों के लिए अत्यंत चिंताजनक हो रहा है और जन जागरण व समाधान के लिए विभिन्न स्तर पर कई जगह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे ये 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व गौ सम्मेलन जो उडुपी के निकट शिमोगा में स्वामी श्री श्री राघवेश्वर भारती के सानिध्य में आयोजित किया गया था। इसमें 15 लाख लोगों ने भाग लिया, जो सभी देसी नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए एक मत थे। अब आज हमारे देश में करोड़ों की मात्रा में जर्सी और होल्स्टाइन आ गई है, तो एक काम किया जा सकता है कि जिस प्रकार से गायों को इनसे क्रॉस कराकर उनको दूषित किया गया, उनको संकरित किया गया, उसी प्रकार से इन पशुओं को फिर से देशी सांडों से संकरित करके और इन्हें देशी बनाने का प्रयत्न किया जाए। देसी नस्ल की गायों को बचाने के लिए बहुत से अन्य गैर सरकारी संगठन ठीक इसी दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं। कई गौशालाओं में संकरित गायों को पुनः देसी नस्ल में परिवर्तित करने के लिए चयनात्मक प्रजनन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा नस्ल सुधार भी किया जा रहा है। कुछ इनके प्रजनन को संपूर्ण रूप से रोक भी रहे हैं। जो शुद्ध जर्सी और होल्स्टाइन है उनको तो बांझ बना देना चाहिए, जीव दया के नाम पर उनका पालन करना चाहिए। वो जब तक एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी उसको डेवलपमेंट नहीं करें, संवर्धन करना है तो देशी गाय का करें। क्या संकरित गायों को हमें तुरंत निकाल बाहर कर देना न्याय होगा? वास्तव में इन्हें बढ़ावा देना सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि इनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में भी मात्र जीवित रहने के लिए भारत जैसे पर्यावरण में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। But it's simply impractical and cruel because they can't survive here. It's too hot for them. They get all diseases that you can possibly think of. Suffer horribly. जर्सी कोई प्राकृतिक जानवर नहीं, ये साइंटिस्टों ने मीट खाने के लिए जानवरों के जीन्स से छेड़छाड़ करके इस विशालकाय प्राणी को बनाया है, इसलिए उसका तो बहिष्कार ही होना चाहिए। And it's not practical for farmers to keep them. वो गायों को यहाँ पनपाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देशी गाय को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकारी नीतियों में बदलाव की गति अभी तक ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत होती है।
The cow is the one which conserves the matter and converts all parts of the grass which it eats or whatever bhojan it takes into various forms of energy-rich products. गायों का खानपान भी उसके गव्यों के सामर्थ्य को प्रभावित करता है। यद्यपि गाय अपने खानपान में आए विष को भी अपनी चर्बी में सोख लेती है और अपने मूत्र व दूध में नहीं आने देती है, पर उसके गव्यों से अधिक प्रभावशाली परिणाम पाने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। खान पान है, रहन सहन है, इस चीज का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो सीधे सीधे उसका असर दवाइयों की क्वालिटी पर पड़ेगा ही। उसको हम लोग शतावरी और अश्वगंधा खिलाते हैं गाय को, ताकि उसके शरीर में शक्ति बने और उसका गोमूत्र जो आए हमारे पास में गोबर आए तो वो अच्छा पावरफुल आए। कैंसर जैसे, एड्स, HIV जैसे, हार्ट जैसी, किडनी जैसी बीमारी में अगर हमें फाइट करना हो, कुदरती चारा जो उसको मिल जाता, घास चारा जो मिलता है वही खाना उससे जरूरी है। कैटल फीड जो खाती है गाय, उसका गौमूत्र लेने से फायदा होगा नहीं। First few minutes of milking, the fat content is very, very less, and this is more medicinally useful because a low fat milk is actually more healthy, and as you milk more and more, the fat content increases. As it is painful for the cow, and it is also an act of greed, and nature poisons the milk as you take it more and more. हो, गाय स्वस्थ हो, फिर जो जंगल में चरने जाने वाली गाय हो, इसका मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जो गाय का है उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। In the Ayurvedic text we look at cows moving freely. They are not controlled by humans. भारतवर्ष में पशुओं और मनुष्यों का संबंध व्यवसाय से ज्यादा प्रेम व सम्मान का रहा है। लेन देन उसका अंश हो सकता था, परंतु आधार नहीं। गोवंश को व्यावसायिक उत्पादकता से परे घर के सदस्य जैसा रखा जाता था। एक खुशहाल प्राणी निश्चित रूप से बेहतर एवं अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। According to the instruction of Sita, if you keep them cheerful without any fear, they will deliver double meat. They celebrate life, we celebrate life with them, and that brings an additional quality to milk which no modern science of nutrition can fully kind of understand. So today, if we look at just standing inside the cow shed continuously itself is going to bring a tamasic quality to the cow as well as to the milk that it produces. Because actions and mental states and its effects very well recognized in Ayurveda. A cow also has to be mentally not stressed. किसी भी प्रकार का भय या दुर्व्यवहार जो कि भाव विहीन व्यावसायीकरण का एक अभिन्न अंश होता है, पशुओं की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता पर एक विपरीत प्रभाव अवश्य डालता है। Just like if your mind is full of anxiety, you cannot work fully. So because they have denied this cheerfulness, you are getting less milk. So the way cows are treated today is extremely stressful for the cow. बछड़े पैदा होने के उपरांत वात्सल्य भाव की अधिकता के कारण बछड़े के स्पर्श से ही गाय के स्तनों में दूध उतर आता है। Milk is for Ayurveda symbol of love. It has got sneha guna. It is a mother's love being expressed to the child. When an infant is being fed, it is not just the physical milk that goes. It is physiologically now found that there is emotion involved. And mutually the love for each other is what nurtures the mother to, give the milk more. And the basis of our culture is that we must create an environment in which the cow will give milk to us also out of love for us. And only then that milk can really nourish us. प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए ऐसे दूध का अंश लेना ठीक है, परंतु वर्तमान डेयरी उद्योग में जोर जबरदस्ती से इंजेक्शन देकर उससे गाभीन बनाना, संतान को कुछ समय के बाद उसे अलग कर देना, फिर हार्मोन इंजेक्शन देकर मशीन से उसका दूध निकालने का चलन तो अप्राकृतिक होने के साथ साथ
क्रूर भी है। इन सारी प्रक्रियाओं से गायें अत्यंत दुखी हो जाती हैं। पता नहीं ऐसी पद्धतियों से निकाले गए दूध का हमारे शरीर और चेतना पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता होगा। These hormones will find place in urine as well as in milk, and consuming those anabolic steroids is absolutely not good, at least for children, because they will start getting abnormal growth. Their puberty will be hastened up, and then, there will be precocious kind of development. इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीर चिंतन एवं व्यापक परिशोधन की आवश्यकता है।